Cyrus has been described as a powerful antagonist. What drew you to this character and how did you prefer for the role? अगर आपने हॉलीवुड की फिल्में देखी हैं तो एंटागनिस्ट has to be strong first of all, Yeah. and if we talk about see Marco is a very hardcore action oriented film, so यहाँ पर antagonist को strong होना ही होना था. तो if we talk about preparation of this character, when they offered me this film and they narrated me about this character Cyrus, so I said he's mad, he's a mad guy, the way the way you wrote Psychopath. about this character, psychopath. Yeah. So I spoke to my director a few things, and एक this psycho killer Ted Bundy, अगर आप उसकी बायोग्राफी पढ़ते हैं तो Yeah. I studied about him, and जो उसका mindset था, how he used to kill people and all. तो उसने कुछ 300 समथिंग मर्डर किए, एंड देन उसका जो माइंडसेट था उस किलर का, सो वो मैंने कबीर के साइरस के कैरेक्टर में ही डाल दी. So that's how I performed. I played this character, I performed, and अपने काम किया मैंने अपने कैरेक्टर का. But it was not a easy role. अभी आज तक मुझे ऐसा लगता है कि इंडियन सिनेमा में इतना डार्क विलन और ब्रूटल विलन या this much intensity मुझे नहीं लगता कि if I remember any name. So I'm very happy that people loved it. Industry Yeah. loved it, and they are messaging, they are calling, getting a lot of calls from the industry all over India now. And fans, they messaged me. I didn't get a single negative message. I've got some 10,000 messages, tweets अलग से, Facebook अलग से, social media अलग से, Google अलग से, but मुझे एक negative message नहीं आया. So I'm very happy they accepted me. They accepted Cyrus. Yeah, so nowadays people also like I'll talk about myself. I am into more into like crime thriller, like these kind of series. So people are likes to watch these kind of series and this thing. Yeah. So Marco makes your first collaboration with Hanif and Uni. How was the experience of working with them? Like, Hanif, he's a great director. He has done some, I think, 6 7 films so far, and all big films with big actors and all. So he's young, he's creative. His vision is very much clear कि मुझे ये सिनेमा बनाना है with these actors and this much action. So वो मैं देख सकता था that because the way he narrated me the film, so I could see that a blockbuster elements in that film. See, yeah. in the narration only, his shooting pattern is very much different. The way he's taking the shots now. तो मैं clear था पहले कि माइंड में कि हाँ चीज कुछ बनेगी तो कुछ अलग बनेगा, कुछ अच्छा बनेगा, एंड दैट्स व्हाट वी डिलीवर्ड. मतलब द वे ही प्रॉमिस्ड मी और द वे ही टोल्ड मी कि कभी सर हम कुछ ऐसा फिल्म बनाने वाले हैं, तो एंड ही वी डिलीवर्ड दैट. एंड Yeah. फिल्म इज अ बिग ब्लॉकबस्टर, एंड लोगों का मानना ये है कि ऐसा एक्शन आज तक इंडियन सिनेमा में दिखाई नहीं. And if we talk about Unni is like brother to me. His age is 37. I'm 37. So एक वो young blood, Yeah, yeah. brother, brohood. So वो जब मैं उन्नी से मिला, and uh, I found a very a very brother in him. एक वो होता है कि मुझे स्टार दिखाई नहीं इसका कि Okay. he has done good cinema. पीछे उसकी फिल्में बहुत बड़ी बड़ी हिट हुई हैं. तो अच्छा लगा मुझे, एंड ही इज अ ग्रेट एक्टर, ही इज अ ग्रेट लर्नर. शॉर्ट्स का बहुत उनको टेक्निकली ही साउंड्स रियली वेल, मतलब बहुत नॉलेज है उनको इन चीजों की. अगर आप फिल्म प्रोडक्शन में, ही इज वन ऑफ द को प्रोड्यूसर इन द फिल्म, एंड मोर ओवर ही इज अ गुड ह्यूमन बीइंग. मेरा मानना है कि अगर आप अच्छे इंसान हो तो आप अच्छे एक्टर हो. So more Yeah. he's a great human being. जितना मेरा I worked 19 days on this film on the sets of Marco. So we were on the same page. मुझे कभी कोई कुछ नेगेटिव चीज नहीं दिखी या नेगेटिव चीज ड्यूरिंग द शूट या कुछ भी ऐसा. We were on the same page. Everybody, producer Sharif, भाई, Unni, and so it was great working with them. Unforgettable experience. I can say that's unforgettable experience. So Yeah. Marco film, I think uh, once in a lifetime बनती है. I'm happy that I'm part of this film. Absolutely. The film has gripping narrative with intense action sequence. Can you share a memorable moment from the shoot that challenged or excited you? Yes, that my pre-climax. You saw the film, right? Yeah. You saw that pre-climax when I attacked on his home. So that was pretty challenging. It was very intense, dark. So was not easy for me to get into that character. So like I said, I studied about this character,
and that one particular scene, that pregnant lady scene, was not easy for me. थोड़ा Yeah. बहुत ज्यादा ब्रूटल था, एंड उस स्किन में घुसकर वैसा परफॉर्मेंस देना वो आसान नहीं था, बट आई मेडिटेट अ लॉट, एंड मैं किसी से बात नहीं करता था सेट के ऊपर ज्यादा, व्हेन आई परफॉर्म, तो मैं ज्यादा बात नहीं करता हूँ, तो Mm-hmm. बट इस कैरेक्टर में मैंने मतलब मैं आई यूज्ड टू सिट अलोन एंड उस स्किन में घुस कैरेक्टर की स्किन में घुसने के लिए, तो वो थोड़ा डिस्टर्बिंग था, दैट पर्टिकुलर सीन। थोड़ा रात सबकॉन्शियस माइंड में आई यूज्ड टू शेयर दिस विद माय वाइफ। Yeah. मैं हर इंटरव्यू में बोलता हूँ कि मैंने अपनी वाइफ से शेयर किया, एंड देन थोड़ा सा शी वाज लाइक कि शी नोज दैट आई डू लॉट ऑफ मेडिटेशन एंड ऑल, तो शी वाज लाइक यार यू नो यू डू वन थिंग, यू कम टू होटल एंड डू मेडिटेशन एंड ऑल, तो इट विल हेल्प यू, एंड इट हेल्प्ड मी एक्चुअली। तो वो पर्टिकुलर सीन था, वो इट कैन हैपन टू एनी एक्टर Yeah, वैष्णवी, इट्स नॉट absolutely. अबाउट Yeah. मी, क्योंकि वो बहुत इंटेंस था, डार्क था, और यू हैव टू डिलीवर दैट काइंड ऑफ परफॉर्मेंस कि ऑडियंस को बिलीव हो कि हाँ यू नो ही साइरस इज दैट मच मैड। Yeah. इफ यू रिमेंबर कि फर्स्ट हाफ में एक डायलॉग आता है कि डोंट बी लाइक योर ब्रदर, डोंट Yeah. लाइक योर ब्रदर, सो वो एक हिंट होता है कि यार इसका भाई तो पागल है। तो Mm-hmm. तो थोड़ा चैलेंजिंग था वो पर्टिकुलर सीन, बट आई एम हैप्पी दैट लोगों ने एक्सेप्ट किया, एंड देन आई एम गेटिंग a lot of messages, calls, कि sir, you nailed it, and when you were performing, there was a pin drop silence in the theater. So Also it मतलब वो difficult भी होता है to present this kind of yeah, action. It should connect people directly. that's what I'm saying कि People should believe it. people should believe. That's what I said कि people should believe कि मैं जो deliver कर रहा हूँ, Yeah. वो पब्लिक को बिलीव होना चाहिए कि हाँ साइरस इज मैड, साइरस इज साइकोपैथ, एंड ही इज अ बुचर, एंड ही कैन किल 10 पीपल। Yeah. तो वो दिखाया मेरा साइकोनेस, एंड आई डिलीवर्ड इट सो वेल कि लोगों को बिलीव हुआ। डायरेक्टर्स के कॉल आ रहे हैं अभी, एंड whoever is watching my old director जो मैंने फिल्में की हैं, तो Yeah. सब Yeah. लोग whoever is watching they are calling it, and I'm very grateful to my director and Hanif bhai and Unni Mukundan and Sharif Mohammed producer, that they gave me this film, and I'm very happy. Since you debuted in Jail, you have like craved a niche for yourself as a versatile antagonist. What excites you the most about playing negative role? सी हीरो के पास ज्यादा कुछ करने को होता नहीं है, बट विलन के पास बहुत शेड्स होते हैं। सो Absolutely. सो मैंने एक फिल्म देखी थी व्हेन आई वाज अ मॉडल, डार्क नाइट। सो जो जोकर का कैरेक्टर था हैथ लेजर ने जो प्ले किया था, तो मैं उनसे बड़ा इंस्पायर हुआ था, एंड दैट्स व्हाई आई यू नो एक माइंड में क्रेविंग सी और इसकी यार मैं आई विल स्टार्ट फ्रॉम साउथ, एंड नेगेटिव कैरेक्टर से मैं स्टार्ट करना चाहूंगा, एंड आई गॉट जिल। मैंने ऑडिशन दिया, मुझे जिल मिली, एंड उसके बाद आई साइन 11 फिल्म्स इन 7 डेज। द मोमेंट फिल्म रिलीज हुई, मैंने 11 फिल्में साइन की 7 दिनों के अंदर, एंड Oh, तमिल में that's बहुत बड़ी फिल्म huge. साइन की। मतलब आज तक ऐसा सिनेमा हिस्ट्री में हुआ नहीं, आज तक कि एक विलन नहीं, आया absolutely. एंड उसने 7 दिनों के अंदर 11 फिल्में साइन कर दी। एंड पैरेलल तमिल में मुझे अजीत कुमार सर के साथ फिल्म मिली वेदालम, जो कि बहुत बड़ी हिट हुई मेरी, एंड पैरेलल कन्नड़ा में सुदीप सर के ऑपोजिट फिल्म मिली। तो मेरी 3 इंडस्ट्रीज में एक साथ डेब्यू हो गया बड़ा। तो आई मुझे लाइक आई सेड कि टू मच टू प्ले, Yeah. ग्रे शेड बहुत होता है प्ले करने में, तो मुझे एक्साइट करती हैं चीजें। So, how do you adopt to the diverse storytelling style and the demands of the Indian cinema? एंटायर सिनेमा। सो Yeah, सी Indian cinema. तो मेरा मानना क्या है ना कि यार सिनेमा हैज नो लैंग्वेज बैरियर। तो अगर आप भी कोई अगर मलयालम मूवी देखने जाओगी, जैसे सपोज आप सब अगर सबटाइटल्स भी नहीं है वैष्णवी जी, तो यू विल अंडरस्टैंड द स्टोरी। Yeah. मेरा मानना है कि जैसे मैं तेलुगु में काम कर रहा हूँ, तो ऑफ कोर्स आई टेक द नरेशन एंड स्टोरी सुन के मैं आई ट्राई टू यू नो बी, मैं वहां का ही होना, मतलब जैसे मैं तेलुगु में ही बात कर रहा हूँ लोगों से, तेलुगु में डायलॉग बोल रहा हूँ, सो दिस हाउ आई फर्स्ट आई लिसन द स्क्रिप्ट। तेलुगु में काम कर रहा हूँ तो मैं आई प्ले लाइक आई एम तेलुगु आई, Yeah. क्योंकि मेरा मानना है मैं ना सेट पर रहकर मैं अपने असिस्टेंट की हेल्प से छोटे छोटे वर्ड सीखता हूँ, छोटी छोटी लाइन सीखता हूँ कि यू नो हाउ टू से वेलकम, हाउ टू से हेलो, खाना खाया आपने, है ना। Yeah. तो Yeah. जैसे इन तमिल में हम बोलते हैं साप्टिंगला,
यू नो अगर मैं तमिल इंडस्ट्री में काम कर रहा हूँ तो आप भी छोटे छोटे वर्ड जब आप बात करते हो लोगों से सेट पर आके डायरेक्ट दे थिंक दैट ओ ही इज आवर मैन, यू नो ही इज फ्रॉम, ही बिलोंग्स टू अस। सो मेरा मानना Yeah. ये है, और सिनेमा का तो कोई लैंग्वेज बैरियर है ही नहीं यार। अभी अभी इंडिया में सब लोग मिलके काम कर रहे हैं, साउथ के लोग यहाँ काम कर रहे हैं डायरेक्टर्स एंड बॉलीवुड के लोग वहाँ काम कर रहे हैं। अब जैसे ऑस्कर में सपोज कोई फिल्म जाती है वैष्णवी, Yeah. तो वो ये नहीं बोला जाएगा कि यू नो इट्स कन्नडिगा फिल्म और इट्स अ No, तमिल no. मूवी, दे पीपल विल से ओ एक फिल्म आई है इंडिया से, ये India. इंडियन फिल्म है। And I'm very happy. People are unite now. People are together. They're all the industries are together now. अभी आईफा हुआ था पीछे, तो I was very happy कि I saw in front row, you know, चारों इंडस्ट्री के बड़े बड़े एक्टर्स बैठे हुए हैं। तो वो अच्छा Okay. लगा कि यार हाँ चले यार अभी फाइनली यार टुगेदर, तो it's a good Yeah. thing. Yeah, absolutely. With exciting projects lined up for 2025, can you give us a glimpse of what fans can expect from you in the coming year? I signed a very big Malayalam film with Suresh Gopi sir. It's his Okay. 250th movie. एंड वो साइन किए। एंड एक फिल्म है हिंदी मैंने डेब्यू किया है अहमद खान प्रोडक्शंस के साथ, वो मैं Mm-hmm. ज्यादा रिवील नहीं कर सकता, बट इट्स अ सीक्रेट न्यूज। Okay. हाँ। एंड एक सीरीज मैंने की है अभी एज अ प्रोटोगोनिस्ट एज अ हीरो वेयर आई एम प्लेइंग अ पुलिस ऑफिसर, तो वो भी Okay. फिनिश की है। तो वो भी इट्स अ न्यूज की ओटीटी पर एज अ पॉजिटिव में दुनिया मुझे पहली बार देखेगी। एंड Mm-hmm. अहमद खान प्रोडक्शंस की जो फिल्म है वेयर आई एम प्लेइंग अ मेन नेगेटिव लीड, इट्स अ बिग बिग कास्ट, बड़ी फिल्म है वो। Yeah. तो वो डेब्यू है मेरा। सो अच्छा एक्साइट, तमिल मूवीज हैं, मलयालम में 2 फिल्मों की बात चल रही है, तेलुगु में एक बालकृष्ण सर के साथ बात चल रही है फिल्म की। सो आई आई थिंक जो मैं पिछले 9 साल से इंतजार कर रहा था पैन इंडियन एक रिकग्निशन का कि यू नो लोग पहचाने, वो पहचान मुझे Yeah. मार्को ने दे दी। एंड आई एम Okay. वेरी हैप्पी, 9 साल की मेहनत अब रंग Yeah, absolutely. So there's a lot for the audience coming this year. यस। Okay. So are there any genre or roles you haven't explored yet, but you are eager to try in the near future? मैं एक चीज करना चाहता हूँ कि यू नो बॉलीवुड में एक एक्शन हीरो की जगह खाली है, दिस इज प्लेस एक्शन रियलिस्टिक हीरो। सो हु डज Okay. रियल एक्शन, वो जगह खाली है। सो मैं आई वांट टू फिल दैट प्लेस। मुझे ऐसा लगता है कि आई कैन फिल दैट प्लेस इजीली बिकॉज आई हैव सीन माय वर्क, आई एम लाइक आई हैव डन Yeah, सम 70 प्लस absolutely. मूवीज। तो वो एक मैनलीनेस, एक जो हीरो में मैनलीनेस होती है, Mm-hmm. यू नो लाइक एक बाप और बेटी की कहानी है, बाप बेटी की कहानी, छोटा बेटा है एंड ही नो हाउ ही इज फाइटिंग लाइक यू। अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, टेकन, टेकन मूवी, Yeah. तो कुछ वैसा सिनेमा। एंड जो एक जगह खाली है, मैं बहुत टाइम से नोटिस कर रहा था कि ये आई कैन फिल दैट प्लेस। तो मैं वो जोनर टच करना चाहता हूँ बॉलीवुड में या एनीवेयर। बट आई एम अ बिग फैन ऑफ हिंदी सिनेमा, मैं नॉर्थ इंडियन, मैं यहाँ से हरियाणा से हूँ। तो आई वुड लव टू डू दैट Yeah, दैट yeah. काइंड ऑफ सिनेमा, एक्शन ओरिएंटेड, मैनली, लाइक जैसे जैसन स्टैथम Yeah. मूवीज करता है। So, with the rise of pan-Indian films and OTT platforms, how do you feel your career has evolved, and what opportunities do you foresee in the era of cinema? सी आई एम वेरी हैप्पी, ओटीटी अभी बहुत इंक्रीज हो गया है एंड यू नो ओटीटी फिल्म्स बन रही हैं, Yeah. जियो इज देयर, नेटफ्लिक्स, हॉटस्टार, amazon, जी, वूट, देयर आर एन नंबर ऑफ ओटीटी चैनल। आई एम वेरी हैप्पी जो डिजर्विंग एक्टर्स थे पहले, जैसे मैं बहुत ऐसे एक्टर्स को जानता हूँ यू नो हु वाज होम, काम नहीं था, थिएटर थे, तो अभी ओटीटी आने से क्या होना कि एवरीबडी इज Yeah. वर्किंग, यू नो जो डिजर्विंग एक्टर्स हैं, तो वो सब लोग काम कर रहे हैं, दे नॉट होम, दे गो फॉर ऑडिशन एंड Yeah. ओटीटी पर ऑडिशन चलता है, तो ना ऑडिशन दो एंड दे विल क्रैक इट। सो वेरी हैप्पी, Absolutely. पैन इंडियन फिल्म्स बन रही हैं। लाइक लाइक आई सेड, मैं पहले आंसर दे चुका हूँ कि इंडियन सिनेमा है, तो यहाँ के लोग वहाँ काम कर रहे हैं, इट्स ओपन अपॉर्चुनिटी नाउ फॉर एवरीबॉडी कि Yeah. बॉलीवुड के एक्टर्स मिलकर काम कर रहे हैं अभी। सलमान भाई वहाँ काम कर रहे हैं एंड देन यू नो वहाँ के एक्टर्स यहाँ पर काम कर रहे हैं। सो इट्स ओपन मार्केट एंड ये बहुत पहले हो जाना चाहिए था, जो अभी हो गया कि पैन इंडियन सिनेमा बन रहा है। लाइक पुष्पा इज अ बिग Yeah. एग्जांपल, बाहुबली इज अ बिग एग्जांपल, केजीएफ इज अ बिग एग्जांपल। क्या होता है ना कि RRR. एवरीबडी वांट्स टू वॉच आरआरआर, एवरीबडी वांट्स टू वॉच अ गुड फिल्म, वेदर वो साउथ इंडियन हो या हिंदी बेल्ट का आदमी है। क्या होता है Yeah. ना कि Yeah. एक तो टिकट्स इतनी महंगी है, आप 400 रुपए की टिकट लेके जाते हो, फिर आपके बच्चे आपसे कॉफी कोल्ड ड्रिंक की डिमांड करते हैं, फिर Absolutely. पॉपकॉर्न लेते तो 1000, 1200, 1500 कहीं नहीं गए। तो वो वैसा सिनेमा बनना चाहिए, यू नो इट शुड वर्थ टू वॉच। तो मेरा मानना है कि अभी अच्छा It's सिनेमा बन रहा yeah, है हिंदी में भी, worth to लाइक watch. ट्वेल्थ फेल आई है, बहुत अ ब्रिलियंट फिल्म।
मुंजिया बहुत बड़ी हिट हुई है, स्त्री बहुत बड़ी हिट हुई है पिक्चर, एंड हम्म केजीएफ वाज अ बिग हिट इन इंडिया में, ट्रिपल आर. सो आई एम वेरी हैप्पी, यू नो, इट्स यूनाइट, पैन इंडियन सिनेमा बन रहा है, सब लोग मिलके काम कर रहे हैं, एंड मोर ओवर अच्छा सिनेमा बन रहा है. there's no barrier between कि like you said कि पहले होना चाहिए था बट पहले बॉलीवुड बहुत स्पेसिफिक कि इंटरनली लोग काम करते थे, मतलब अभी पीपल क्या है ना वर कि नॉट अलाउड टू डू, बट अभी कैसे देयर इज अ डबिंग हो जाती है तो फिर देयर इज नो बैरियर एट ऑल यू लेफ्ट. नो, मैंने कहा ना तो आपको कि एवरीबडी वांट्स टू वॉच अ गुड सिनेमा. कांतारा एक ये मूवी आई थी, एब्सोल्युटली कांतारा एक मूवी आई एब्सोल्युटली थी, बिकॉज ऑफ द माउथ टॉक्स, माउथ पब्लिसिटी की वजह से कितनी चली वो पिक्चर. तो एब्सोल्युटली चाहे वो दिल्ली के लोग हैं, चाहे वो बॉम्बे के लोग हैं, चाहे वो कलकत्ता के लोग हैं, एवरीबडी वांट्स टू वॉच अ गुड फिल्म. गुड और फिल्म. माउथ टॉक्स होती हैं. लेट्स टेक एन मार्को एग्जांपल कि व्हेन दिस मूवी रिलीज वी गॉट 89 screens. Now हम्म. today we got some 1300 or 1400 plus screens because of the ओह mouth talks. या So अच्छे, if you make a good content, people will love it. पीपल Whether, विल लव इट या. and लोग ऐसा नहीं है कि लोग हिंदी में देखेंगे डब, people will go and watch in Kannada also अगर कन्नड़ा रिलीज हो रही है. हम्म. या. Yes. ओके.